welcome to this session of SWC Talk with the Toppers. And again, first of all, congratulations everyone for this amazing result. Anit, you have got 99.97 percentile. I think अगर मैं इस test में assume करूँ तो that would be somewhere around 180 odd rank, right? Yes. In this particular paper. Yes. Yeah. Well, that's not your final rank, but yes, that for this exam this would be your rank. ठीक है ना? And Amay, you have got 99.94 percentile, right? Approximately, yes. And then that would be somewhere around 394 or 390 के around rank होगी आपकी इस exam के अंदर. That is there. Shrestha, for you, I think it is 99.92. Yeah. And rank would be around 510. Great. ठीक है. And Saptarshi, again for you, it's around 99.91. Somewhere around that, and the rank would be around somewhere around 530. So that's amazing. Specifically, again, Anit and Shrestha, I was surprised to see your math result. Very, very surprised to see your math result. And again, that was somewhere around, you got 100 percentile in math. So that was like rank 1 in India for mathematics, right? Yes. So first question would be, what did you guys feel when you first saw your results? I would start with Shrestha. Around 10 or 11 के अराउंड आया था रिजल्ट। तो हम फीलिंग बस रही थी कि 2 साल प्रिपरेशन इतनी करी है, इतना टाइम बिताया है इधर, तो मतलब फाइनल एक डिजिट में ही रिजल्ट निकलेगा 2 साल का पूरा। तो देख के खुशी थी और मतलब सबकी मेहनत देख के मतलब खुश तो हुआ था। मैं ऐसी खुशी थी कि किसी और कंपेयर नहीं हो सकती ऐसी थी। Great. How was your feeling, Amay? Feeling was really nice. I think I wasn't expecting that much percentile according to my marks, but maybe due to normalization and other factors, I got it. So I was really happy to see that number. And भाई 2 साल की मेहनत अब मतलब जब दिखती है कि हाँ कुछ करा है तो अच्छा लगता है, पेरेंट्स को भी बहुत प्राउड फील होता है, काफी अच्छी फीलिंग होती है। Great. Saptarshi, how was your feeling, beta ji? It was a good feeling. It was after so much of mock tests and so much of a lot of ups and downs in the 2 preparations. I got a result which I was satisfied with, and it's a good start to every exam. Great. How about you, Anit? I had a similar feeling. Basically, my preparation has been a gradual increase. Yes. Getting a result from like working hard and working harder each day, it feels good. It feels great, actually. What do you think? What was your single most, the most important factor? क्या लगता है आप लोगों को कि what was the most important factor for this result? Shrestha, let's start with Shrestha. As in, whenever the student can feel down, the teacher is always there to support him. And मतलब मुझे याद है 1 साल पहले वैभव भैया थे, उन्होंने मतलब मैं बहुत डाउन हो गया था, तो जितनी भी ग्रोथ हुई है उस पॉइंट के बाद से हुई थी, तो मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वही चीज है, टीचर के साथ कोऑर्डिनेशन। That is very good. Amay? I think it's consistency, like just working hard each and every day. What do you think was the single most factor for you? I feel similarly. I feel consistency, pushing forward. I just wanted to push forward and try to score more. So yeah, consistency was one factor. Great. Saptarshi, how about you, beta ji? For me, it's always I have a very big fear of tests, and I'm quite inconfident about my preparation always. So even if I'm scared of tests, there were a lot of tests, especially at the end of 12th, because OBTs were introduced and number of tests were increased in the last year. So all of them actually helped build exam mindset. At the end of the preparation, we give a lot of tests, a lot of means, a lot of mocks. Yes. Great. Amazing बात है ये तो. Do you yourself believe that you got 100 percentile in mathematics, guys? Anit? I don't think so, because mathematics, yes, it is one of my favorite subjects, but scoring 100 percentile in that, it is like it is a dream, I feel. Yes.
And how about you, Shresth? What was your feeling when you saw your maths result? सेम फीलिंग सर, और मतलब मैथ मोस्ट डिफिकल्ट मानते हैं आप, फीलिंग तो बहुत होती नहीं है सब्जेक्ट में, लेकिन लास्ट में फीलिंग डेवलप हो गई थी टेस्ट देने से, कैलकुलेशन मतलब करने में मजा आने लगा था। ये मतलब फिर भी 100% एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन ड्रीम की तरह ही था। But ऐसा क्या फैक्टर होगा श्रेष्ठ जिसमें तुम्हें लगता है कि मतलब ये मेरे को लगता है कि मैथ्स में मैंने ऐसा ये किया है जिसकी वजह से आई हैव गॉट दिस 100% इन मैथ्स? पैनिक नहीं करना था। एक क्वेश्चन था उससे उससे हो नहीं रहा था लास्ट में, उसमें लास्ट को मैंने 5 मिनट उसको दिए, काम माइंड से दिया था, पैनिक नहीं करा था, तो वो हो गया था क्वेश्चन, तो शांति से करने से वो हो गया था। पैनिक नहीं करे। ग्रेट। अबाउट यू अनित, तुम्हें क्या लगता है कि क्या फैक्टर रहा कि भाई मैथ्स में ये परफॉर्मेंस ऐसे आ पाई? I think it was practice, basically going through different kinds of questions. So almost the whole maths paper, it was very predictable for me. Like almost all the questions were previously done by me, so it felt like I was doing some revision kind of thing. Nice, amazing. ये बहुत ही amazing फील है कि एग्जाम में रिवीजन की फीलिंग हो रही है। तो ये तो बहुत ही, that is very good. तो मतलब what all strategies do you think, what was your general question मैं पूछ रहा हूँ कि what do you think might have been your strategy while preparing? I studied through 2 years, of course. Everyone, I think one of the biggest realization कि कंट्री में बहुत सारे बच्चे 2 साल इक्वली अच्छे से पढ़ते हैं, बट आई थिंक सिद्धार्थ भाई वाज द वन हु टोल्ड मी इन 11th कि जो 5000 बच्चे होते हैं टॉप के 5-10 हज़ार, उन सबकी प्रिपरेशन सेम होती है, सबको इक्वली आते हैं, सबको सेम चीज़ आती है। व्हाट मैटर्स इज तुम एग्जाम के दिन कितना अच्छा कर पाते हो, एंड दैट डिपेंड्स ऑन योर कॉन्फिडेंस, योर नर्व एंड योर एबिलिटी टू स्टे calm and composed. Calm is very important. Yes, you're right. What about you, Amey? What was your strategy? Exam temperament, I think, is really important. That all your preparation might not present you the results you might want if your exam temperament is not right. So I think that is very important. Another thing I would like to add is that during the preparation, the importance of pre-class and post-class work, I think, has helped me a lot. So there was some, of course, during the revision, it is not possible to revise each and every question, but because I had revised everything while the chapter was going on, and at the end, I was able to recall all the concepts that were asked in the paper. Even though I think my paper was probably the toughest, and maths I found a bit tough, so I was not able to solve 1 or 2 questions, but overall, I am satisfied with what I was able to do, and I think it's the best I could have done. Maybe I could have done better, but I'm really happy. No, I think 99 वो better तो ना फिर इंसान हमेशा ही कर सकता है ना, जो इंसान 100 साल जीत जाएगा वो बोलेगा मुझे जीना था। I think you have done your best. So I think result does not matter. So you should not think that you could have done better. You should just think that you can put better effort. रिजल्ट तो मुझे लगता है कभी रिजल्ट में सोचना नहीं चाहिए। रिजल्ट अभी अच्छा आ गया, हो सकता है कभी फ्यूचर में किसी और चीज में उतना अच्छा ना आए, किसी और फैक्टर की वजह से, तो रिजल्ट नेवर मैटर्स। व्हाट मैटर्स इज एफर्ट। तो प्री क्लास वर्क, पोस्ट क्लास वर्क की स्ट्रेटजीज ने हेल्प करा बेसिकली तुम्हें। लोग तो हमें जल्लाद बोलते हैं ना, हमें तो लोग जल्लाद बोलते हैं तो पीछे पड़ जाते हैं। प्री क्लास वर्क भी कराते हैं, पोस्ट क्लास वर्क भी कराते हैं, मशीन की तरह लोगों को पागल कर देते हैं। ऐसा पूछने में आता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ऐसा लगता है तुम्हें प्री क्लास वर्क, पोस्ट क्लास वर्क में? वो स्टार्टिंग में आई थिंक होता है, बट फिर आदत ही बन जाती है। वो ना करो तो अजीब लगने लगता है कि हाँ, फिर कॉन्फिडेंस नहीं आता फिर बाद में अगर ना कर रहे हो तो। कई चैप्टर्स आईआईटी वगैरह जाओगे तो अभी प्री क्लास वर्क, पोस्ट क्लास बोलो अगर वो पहले से पढ़ के आओ तो क्लास में अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होती है और मतलब टॉपिक स्ट्रांग होता है, रिटेंशन भी बेटर होती है। रिटेंशन तो काफी श्रेष्ठ, व्हाट वाज that is good. श्रेष्ठ, what was your strategy? कंसिस्टेंसी एंड फेलियर से सीखना। मतलब मुझे याद है पूरे पहले साल फेलियर दे के मैंने मतलब जो टीचर बताते थे वो कोऑर्डिनेशन कम करता था मैं, लेकिन फिर सेकेंड ईयर फेलियर से सीखना और मतलब ये प्रेडिक्ट करना थोड़ा बहुत कि ऐसे ही चलता रहा तो नहीं होने वाला काम। और एंड में जो एग्जाम टाइम होता है तब रिजल्ट के ऊपर फोकस बिल्कुल ना करना कि मतलब 2 साल जो थे वो इस 3 घंटे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज थी मेरे लिए, और जैसे जो 3 साल में सीखा वो आगे कंटिन्यू होगा
2-3 घंटे में रिजल्ट आया वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा इतना। तो मेरे रिजल्ट पे ना फोकस करके मेहनत करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। यस, बिल्कुल परफेक्ट बात बोली तुमने, रिजल्ट पे ना फोकस करके मेहनत पे फोकस करना, दैट इज इंपॉर्टेंट। तुम कह रहे हो फेलियर थे पहले 10th में, तो यू शुड जस्ट इलैबोरेट ऑन योर फेलियर। क्या फेलियर था? मतलब मार्क्स पे टेस्ट में, और जैसे कि कितने परसेंट नंबर आए किसी एक एग्जाम में? लोएस्ट आई थिंक 154 और 180 मार्क्स में से 36 और 38 मार्क्स पे लोएस्ट। हेलो भैया, वीडियो पॉज हो गई है, बट हाँ मतलब फॉर पीपल हु फील कि यार जब मार्क्स खराब आते हैं तो उसको बस वो अपनी लाइफ की स्टोरी मान लेते हैं कि दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद मी। तो वो चेंज में बिलीव करना बहुत जरूरी है। यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ। आई थिंक दैट इज बेसिकली द आइडिया। बताओ बेटा, आपके लिए क्या फीलिंग? स्ट्रेटजी? मेरी स्ट्रैटेजी इट वाज वेरी सिंपल, मतलब जो जो भैया ने बोला है वो तो करना ही है, बाकी खुद से ट्राई करनी है चीजें। दैट वाज वन थिंग दैट आई ऑलवेज प्लान्ड टू डू कि प्री क्लास तो है ही, बट थोड़ा एक्स्ट्रा करना है उससे, मतलब हैविंग टू डू द चैप्टर बाय योर ओन सेल्फ। दैट इज वन स्ट्रैटेजी दैट आई यूज्ड टू ट्राई, सो दैट क्लास में जब जाएं तो फिर ऐसा लगे कि डाउट्स ही सॉल्व हो रहे हैं बेसिकली, और लॉजिकल स्ट्रक्चर बन रहे हैं दिमाग में। Yes, खुद से करना बहुत जरूरी होता है। You're totally right on that also. So consistency is very important. Pre-class work is very important. Post-class work is very important. Remaining calm is very important. ये सोचना कि 3 घंटा ज्यादा important है, उससे ज्यादा important effort है, ये बहुत important है। So I think it's a combination of all the things which we generally preach. That's what you guys have done. Saptarshi, any specific memory that you had? अगर इन 2 साल की बोलें, कुछ इंटरेस्टिंग बात या कुछ इम्पोर्टेंट बात जो लगे आपको है? I mean, one of the most interesting parts was, of course, कि just paper से around just few weeks back, मतलब February के first month में there was a test and I had scored very less in that test, so very less compared to what I usually score, and I was devastated. I was devastated कि अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, बिकॉज पेपर में दिमाग में चल रहा था कि पेपर से इतने दिन पहले नंबर नहीं आ रहा, अब क्या ही होगा। सो मतलब मैंने तो ये बोल दिया था मम्मी पापा को कि मैं इंजीनियरिंग करूंगा ही नहीं, कि हो गया वो तो हो गया। बट I remember that. but I called my parents, called Shobit bhaiya, because they were like हम तो कुछ कर नहीं सकते इसको। तो Shobit bhai said come to the center, and we went to the center that day, and we reached at around 9 o'clock that night, and we stayed there for around 1.5 hours. And I talked to my teachers. Shobit bhaiya was there, Vivek bhaiya, my mentor, was there, and that day he explained to me one thing, and he instilled confidence in me that you have done whatever I have told you to do in these 2 years, you have done, and irrespective of how many hardships you have gone through, irrespective of how many failures you have gone through and how many failures you are going to go through, you will do well because I have seen you working hard. And when you have that, when you realize that your teachers, the people you really look up to, they believe in you, that is a wonderful feeling, because that instilled confidence in me ki if they can believe I'll do well, then I can believe I'll do well. That's great. How about you, Shresth? I think Shresth, yes. Any great memory? मेरे लिए वही एक स्पेसिफिक टीचर के साथ था। पीटीएम थी, तो उस टाइम पे दूसरों से कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया था मैंने उसको, जब मार्क्स नहीं आ रहे थे। और मतलब कोई टीचर, जब स्पेसिफिक टीचर जो होता है, जो साथ में देखता है तुम्हारी परफॉर्मेंस, तुम्हारी ग्रोथ, डाउन तुम्हारे देखता है, अप्स एंड डाउन, तो उनसे पूरा शेयर करा था मैंने कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, मुझे क्या फोकस है, क्या एम है, क्या डिस्ट्रैक्ट करता है, सब कुछ शेयर करा था। तो वो मोमेंट मुझे अभी भी याद है कि उन्होंने बताया था कि कितने से ऊपर तुम जा चुके हो ऑलरेडी, और मतलब जो तुम नीचे देख रहे हो अपने, कि तुम कितने ऊपर देख रहे हो अपने, कि तुम कितने नीचे हो दूसरों से, वो मत देखो, ये देखो कि तुम कितने से ऊपर हो और कितना ऊपर जा सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने समझाई थी मुझे, और खुद पे बिलीव कराया था कि आई कैन डू दिस। और उसके बाद से वही मेरा स्पेसिफिक पॉइंट है जो 2 साल में मैं मेमोरी का याद रखूंगा हमेशा। Nice. क्या प्लान है सप्तऋषि?
What's the plan? That is one of the biggest things कि बच्चों को तो लग रहा होगा कि इनकी तो हो गई percentile आ गई, but I can assure you I don't think none of us are feeling very satisfied yet. I am pretty sure all of four of us are very tensed. Very tense. Very tensed because first of all there is next week we have our March attempts. Even though चलो Feb की percentile तो काफी ठीक ठाक आई है, this can land us into any decent college, but then we have our main exam in the month of July, which is not going to be like not like this. This is a very standard exam, but that is going to be way more tougher, and that is what we have been aiming for the last 2 years. So अब सब बढ़ गया, evaporate हो गया, हमने exam दे दिया, आ गई percentile, so that's how it should be. Anit, what are your thoughts? I have the same thoughts. मतलब ठीक है कि पहला एग्जाम आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बट that should be taken as a motivation कि हाँ हम जो हम कर रहे हैं, हम जो practice use कर रहे हैं, that is correct, and that continuing with the same practice should give us more results. Yes, बिल्कुल. श्रेष्ठ. So ट्रेलर खराब गई है, पूरी मूवी बाकी है. मेन जो बैटल है वो तो अभी 3 महीने अभी भी उसमें है, और मतलब 3 साल के लिए बस जिसके लिए लगे थे वो मेन चीज तो भी हुई नहीं है, तो बस कंटिन्यू करना वही चीज. और बोर्ड भी है, बीच में तो ड्रॉप भी आया नहीं है. बोर्ड की प्रिपरेशन थोड़ी डिफरेंट है, और उसके बाद जो मेन एग्जाम है उसकी थोड़ी डिफरेंट है, तो प्रिपरेशन के स्टाइल में थोड़ा डिफरेंस आएगा. लेकिन दोनों में सूटेबल रहना और दोनों की हैबिट बना के चलना वो इम्पोर्टेंट है. और चेंज करना, एक प्रिपरेशन से दूसरी प्रिपरेशन में चेंज करना. तीन की हैबिट बनानी है, मेंस, एडवांस और बोर्ड. और बोर्ड में 99.9% लाना बहुत मुश्किल है, बता रहा हूँ. Difficult than getting in JEE mains, है ना? Amay, what are your thoughts for next 3-4 months? मतलब वही है, मतलब कि पहला मेंस अच्छा गया तो अच्छा लगता है, बट बाकी मेंस भी देने का प्लान तो है ही कि वो तो मतलब काइंड ऑफ अब आदत सी पड़ जाएगी 4 बार देके. बट यानी मेन तो एडवांस ही है, तो थोड़ा उसका भी मतलब आई थिंक लास्ट के मंथ्स काफी क्रूशियल रहते हैं एडवांस से पहले कि आपका मतलब कैसे मतलब क्या कर रहे हो एंड किस तरह से कर रहे हो. आई थिंक वो लास्ट के मंथ्स काफी डिसाइडिंग हो सकते हैं. अगर आप उनमें मैसअप कर दो तो प्रॉब्लम हो सकती है. आई थिंक अब मतलब आई थिंक रियल जर्नी स्टार्ट्स नाउ कि अब आप किस मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि अब मेंस अच्छा हो गया तो very good thoughts you have. मतलब I think all 4 of you, and I think we all concur with your thoughts, and I think you should all everybody should in fact take that exam as ठीक है. तो how was your feeling, मतलब how did you feel after studying at Swastik? So I started 3 years ago, back in 10th. I back then it was a different name. I met Shobit Bhai on the day of my admission. Actually, he was the one who was there, and that day while admitting us, he casually just said that I achieved AIR 15 in this JEE Advanced, and I was so impressed that I will be under the guidance of a person who was all India rank 15 in this exam. 10th was fine. 10th में तो मतलब boards का ही preparation होता है, but still we had good teachers. But I think main preparation started from 11th, and 11th में Shobit Bhai used to take my physics, and he was the one who has taught me physics in these 2 years. And I think more than I've been taught physics a lot by a lot of different teachers. I have learned physics myself. I've done every work, but I still feel that if Shobit Bhai was missing in that thing, in that part of my preparation, I would have not been able to produce the confidence I have in solving the questions, because he used to teach us in a way. He used to always tell us that exam mein you will not remember the concept, you will remember the instinct. So if you have to have questions on your instinct कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है. Alok Bhaiya, and for Alok Bhaiya, I used to dread organic chemistry before 12th. Organic chemistry was the biggest nightmare. Hydrocarbons और IUC 2 chapter होते हैं, मुझे समझ नहीं आते थे because there were no mechanisms, there was no logic. In 12th, Alok Bhaiya started taking our organic, and he used to take classes at night. 7 बजे से 12 बजे शुरू हुई थी, and suddenly organic became fun.
we had weird ways of, he would joke around. मतलब कार्बन को लात पड़ गई, हाइड्रोजन को लात पड़ गई, इस तरह याद रखते थे हम लोग. एंड आई एक्चुअली रिमेंबर द मैकेनिज्म्स यूजिंग दैट कि हाइड्रोजन को यहाँ लात पड़ेगी, यहाँ पे IMPT करवा देंगे, हो गई. We had weird mnemonics for everything. And even today organic and notes पढ़ के मैं गया था, आज भी इस बार भी वही पढ़ के जाऊंगा, and I'm pretty sure that those are more than enough. And as for Siddharth Bhaiya has been my mentor for these 3 years. In fact, he was the one who was always mentoring me, always keeping track of my performance. I would talk to him a lot of times, and he was always the one who would instill confidence in me. And that was very much more important, because the psychological side of the student, he was able to maintain it in a much better way. Overall, Swastik classes it has been quite a good choice for me, because they have helped me in, of course, having this performance. They have the big role in this, and I hope I can repay them with equally good performance in the final exam. Actually, Yeah, I that's think there's this amazing thing that you have said about Siddharth Bhaiya. मतलब मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आलोक भैया और मैं तुम लोगों से इतना इंटरेक्ट और इतनी क्लासेस इसलिए ले पाते हैं क्योंकि सिद्धार्थ भैया इज देयर टू टेक केयर ऑफ Yes. एवरीथिंग एल्स. जो भी हो रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब बहुत बहुत माइनर चीजें होती हैं यार, और बहुत मेजर चीजें होती हैं जिसमें अगर हम उसमें लगे रहेंगे ना, हमारे को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उस पर नहीं सोच सकते. We just think about teaching and we just think about what we can do better with the students, because Siddharth is taking care of everything else from day one to day end, and then he's still interacting with all the teachers, all the students, and that's amazing. I think that's an amazing thing that you have said. Thank you. Amay, how did you feel studying here? Pretty average. No, I was very happy. I think when I joined, Saptarshi was in the same batch as me. So I remember at that time I was like, I didn't used to study anything extra at all. Just school में पढ़ लिया जो पढ़ लिया, यहाँ पे class कर ली. It was just like that. So I still remember I used to go to the class without studying anything, just देख रहे हैं क्या चल रहा है. And Saptarshi used to answer all the questions, and I was like, कि मतलब ये तो सब पढ़ के आ गया है, मैं कुछ भी नहीं पढ़ा. I was not very serious at that time. So mainly when just before the class 10 board examinations, I think the class 11 syllabus had started. So that was the time I seriously became serious about this preparation. And I think my brother is also from an IT, so that was also a thing that हाँ वो गया मेरे को भी जाना है, उससे better करना है. So that was also motivation. And I still remember the first class that Shoaib took. He took my name, like, who is Amit Singhal. So I was like really proud कि हाँ पहली बार आया and मेरा नाम पता है. So I was like कि हाँ अब तो कुछ करके दिखाना है कि इन्होंने मेरा नाम जाना है, तो अब मतलब उनका नाम भी मेरी वजह से शायद फेमस हो पाए किसी तरह, तो मैं उसका जरूर ट्राई करूँ. तो काइंड ऑफ मोटिवेटिंग फैक्टर आई थिंक बहुत मेजर थे शोएब भैया शुरू से ही, एंड हमेशा सपोर्ट करा है. आलोक भैया भी मतलब आई थिंक केमिस्ट्री में मेरे अभी भी वैसे लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, बट स्टिल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई थिंक आलोक भैया मेरा भी फेवरेट है. वो इनऑर्गेनिक की वजह से है, वो तो अलग बात है, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई थिंक आलोक भैया ने मतलब जिस तरह से वो लगता तो सब कुछ ही बहुत आसान है, लाइक सप्तर्षि मेंशन्ड the way he used to teach us, like everything is pure logic. Earlier I used to think that organic is about rectify the reactions and just make the products, but it's not at all like that. So I think Alok Bhaiya has helped me develop confidence in chemistry. I won't say love, but yeah. So I think, and Siddharth Bhaiya also, I have not interacted a lot with him, but I used to ask some doubts earlier, and I always liked his attitude, like chill hai, sab badhiya hai, and क्वेश्चन भी एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएंगे. So I was always कि ऐसा बनना है कि हाँ एकदम ये सब चिल होना चाहिए लाइफ में, कोई प्रॉब्लम ना हो, करते रहो. So, nice. It was really a lovely experience. I guess. Great. Anit, how was your experience, beta? Yeah, so I joined from class 11. So I remember my first day was my class was with Weber Bhaiya, and like I just remember various memories from that class, how he instilled in us the motivation, actually the motivation for preparation and having to practice, and like
and then I started getting in love with this preparation because of my mentors, my teachers. I remember Shobhya when I had my first class with Shobhya, how he motivated us for preparing. And I when I solve questions from physics, it's like faint memories come in my mind कि हाँ शोभिया ने ये बोला था, ऐसे करना है, हाँ ऐसे करना है. तो that is one factor I feel that Shobhya was very good at, like um, tackling various types of problems and मतलब simple methods हो गए and क्या temperament रखना है while solving a problem. Then आलोक भैया के साथ I feel that like हम ऑर्गेनिक जैसे बोल रहे थे सप्तर्षि हमें कि ऑर्गेनिक में माय फीलिंग वाज वेरी डिम. आई फेल्ट दैट ऑर्गेनिक में रटना ही है, ये करना है. बट आलोक भैया के साथ मैकेनिज्म समझ में आया है कि हम ऐसे लॉजिक से सोच सकते हैं, हमारे पास ये ऑल्टरनेटिव्स हैं. तो दैट इज वन थिंग दैट आई लाइक इन आलोक भैया's टीचिंग कि लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाना दिमाग में. Great, nice, amazing बात है. तो श्रेष्ठ, how was your feeling studying at Swastik? मैंने भी 11th में ज्वाइन किया था और जैसे मैंने बोला कि वो सप्तऋषि को देख के फील करता था कि वो कुछ करके नहीं आया है. मैं हम दोनों को देख के फील करता था कि मैं कुछ करके नहीं आया हूँ स्टार्टिंग में. तो और 11th में एक क्लास हुई थी शोभा की, लिक्विड की, जिसमें मतलब ऑलमोस्ट पूरी क्लास थी. कुछ बच्चे काम करके आए थे और कुछ करके नहीं आए थे, और शोभित भैया ने बीच में क्लास छोड़ दी थी और उन्होंने नेक्स्ट 2 क्लास आई थिंक छोड़ दी थी. वो अटेंड नहीं कर, हमें पढ़ाया नहीं था वो. और वो क्लास में जब भी याद है कि उन्होंने सबक मतलब सिखाया था कि नहीं करके आते हो और कोई और तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है, जो भैया जैसे इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उनको कैसा फील होता है जब सामने वाले बच्चों से वो रिप्लाई नहीं आता, वो रिस्पॉन्स नहीं आता मेहनत का. और जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया अच्छे से, तब ये फीलिंग होती थी, जब एक्सटेंडेड आर्ट्स होते हैं फीलिंग होती है कि लोनलीनेस आ जाती है या अकेले कर रहे हो, करते जा रहे हो. लेकिन फिर ये फीलिंग आती थी कि आलोक भैया, शोभित भैया, सारे टीचर्स हैं, वो हमारे साथ ही 12-14 घंटा 16 घंटा मेहनत कर रहे हैं, तो वो लोनलीनेस की फीलिंग नहीं रहती थी. और आलोक भैया की तरह जैसे कि एक लाइन होती है कि लेमैन की तरह सॉल्व करो कोई भी चीज़ है, कोई भी मैकेनिज्म है, ज़्यादा कुछ बड़ा काम होता नहीं है उसमें, बस मेंटली काम लो और कोई भी मैकेनिज्म है खुद बना सकते हो. और कोई भी चीज़, कोई भी नई चीज़ हो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं होती है. और कोई भी चीज़ बेसिक से स्टार्ट करोगे, लेवल 1 से स्टार्ट करोगे. जैसे शोभिया ने एग्जाम्पल दिया था कि सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है, तो एक लेवल नीचे जाते जाओ प्रिंसिपल से पहुंच जाओ, वहां से फिर बैकग्राउंड पूरा बैक ट्रैक करो और फिर वो जो बिल्डिंग बनेगी, वो जो कॉम्प्लेक्स जो चीज़ थी लास्ट वाली, वो सिंपल लगने लगेगी, प्रिंसिपल के लेवल 1 टाइप की लगने लगेगी. तो ये दोनों चीज़ें बहुत हेल्प करी मुझे. और वो चीज़ थी कि टीचर्स हमारे साथ पूरी मेहनत कर रहे हैं और जितनी हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और हमें उनके लेवल पे पहुंचना है मेहनत में. कंटेंट को लेके तो तुम्हें मतलब आई फील कि क्वेश्चन वाइज, प्रॉब्लम वाइज तो यू फेल्ट स्वास्तिक में बहुत कम क्वेश्चंस कराते हैं, बहुत ज्यादा कराते हैं. क्या फीलिंग थी तुम्हारी विद रिस्पेक्ट टू द कंटेंट? कोई भी बता सकता है, तो इट्स अ वेरी ओपन क्वेश्चन. आई थिंक प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी चीज थी वो. और प्रैक्टिस लेवल मतलब जितने भी अगर कम करते हैं कि तुम्हें तो और मांग सकते हो, और टीचर्स की तरफ से पूरी मेहनत होती थी. जितने भी क्वेश्चन हो, लेवल 1 से लेवल 3 लेवल 4 तक के क्वेश्चन तो सारे डिस्कस होते थे. और आलोक भैया ने लास्ट क्लास की थी कि लेवल 4 टाइप के क्वेश्चन भी करवाए और उनको सिंपल तरीके से, इजी तरीके से करवाया. और क्वेश्चन लेवल, क्वेश्चन नंबर दोनों पूरे ठीक रहते हैं कि जितनी भी मतलब इनफ भी होते हैं और कम नहीं पड़ेंगे कभी भी, लेवल और क्वांटिटी दोनों में. सही है, अमेजिंग बात है. आलोक भैया? हाँ नहीं, मैं तो इन जनरल व्हाट डू यू थिंक compared to 11th, the way we were running in 11th when we were under a different name, and compared to 12th when the shackles were not there. So what do you think? Did you feel things became better? मतलब क्या लगा तुम्हें जब हमने स्ट्रक्चर चेंज करा, मतलब जब we were doing things in a weekly manner? What do you think in general? Did you feel it became better, your performance compared to 11th and 12th?
was there any difference in your performance in 11th versus performance in 12th? If you have any, general feeling about it. Anit, what's your feeling? Yeah, so I can say comparing class 11th and 12th will be very tough for me because class 11 में मेरी performance और class 12th में मेरी performance, it's a huge jump. मतलब I felt it, and मतलब the structures that मतलब we were able to make in class 12, like with be it testing, be it class की timing क्या रखनी है, मतलब flexibility in class timing और वो सब, that thing it was very great for me. मतलब I felt it was very logical to, मतलब बहुत सारे ऐसे changes थे which was very logical. मतलब I felt कि ऐसा पहले क्यों नहीं सोचा गया, ऐसा मतलब ऐसा ये tradition क्यों बना रखा है. So I felt कि ये changes they helped me in my growth. जैसे कि क्या चेंज तुम्हें अच्छा लगा? जैसे OBTs हो गए, like at the end of the week we would have tests called OBTs, SMTs. तो उन टेस्ट से चैप्टर वाइज हमको पता चलता था कि कहाँ कमी हो रही है, कहाँ which concept are we lacking in, and उस पे काम करना it मतलब बता देता था कि कौन से कंसेप्ट पे काम करना है. So that was a major factor. बाकी क्लास टाइमिंग्स तो पहले क्लासेस जो थी वो इवनिंग में स्टार्ट हो गई थी, लाइक आराम से अपने मतलब उस टाइम पे देयर इज नो डिसरप्शन एंड बिल्कुल काम एंड कलेक्टेड माइंड से हम पढ़ सकते थे. Okay, that is great. Hame, what do you think? 11th and 12th, what was the difference? What do you feel about it? Difference, I think mainly मतलब जो structure change I think काफी beneficial ही रहा. यानी क्लास लेने का तरीका भी like 11 में मतलब number of questions and type of questions थोड़े different ही रहते थे. 12th में आके वो better ही हुआ, जैसे short में miscellaneous questions वगैरह कराते थे. I think वो काफी confidence boost करने में भी help करता है कि हाँ difficult questions भी हैं तो हो रहे हैं, तो मतलब topic strong है. मतलब वो आलोक भैया का भी वो 6 क्लास वाला I think एक ही गो में पूरा कर लो तो कॉन्फिडेंस आ जाता है. मतलब कि हाँ लोग तो बोलते हैं टॉर्चर होता है, तुम बोल रहे हो एक ही गो में कर लो, लोग तो बोलते हैं सब टॉर्चर होता है. इट इज टॉर्चर ऑफ 6 आवर्स. शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स वाली बात है. वो लॉन्ग टर्म गेन, लॉन्ग टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन. 2 दिन भले ही थोड़ा टॉर्चर लगे पर उसके पूरे वीक फिर आपके लिए वो इजी लगता है कि हाँ क्वेश्चंस हो रहे हैं, टॉपिक समझ आ गया, रिवाइज करने का टाइम है. आई थिंक वो होता है. क्वेश्चंस भी आई थिंक मतलब पर्सनली ऑलवेज प्रेफर क्वालिटी और क्वांटिटी. 100 सेम सवाल करने से बेटर 10 नए डिफरेंट सवाल कर लोगे तो आई थिंक उससे माइंड भी ग्रो करेगा, लर्निंग भी होगी. तो आई थिंक क्लास में ऑलमोस्ट हर तरह के क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं और मेरे को पर्सनली कोई भी किसी भी सोर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि ये कॉन्सेप्ट क्लास में बताया नहीं या ये मेरे को आता नहीं है, कहीं और से देखना पड़ेगा. वो हमेशा नोट्स कॉपी खोलो, वो टॉपिक हमेशा मिल ही जाता था मेरे को. इवन इन द पेपर आई गॉट 1 or 2 questions wrong that now that I open the class copy I can see it was there. So I have not revised that thing, so maybe that I couldn't solve it there, but exact questions paper में भी class copy को उठ के आ जाते हैं. So I think lectures तो बहुत ही amazing हैं. So you felt it was better, you did better in 12th because of change in things which happened compared to 11th overall? हाँ, I think मतलब काफी वो वीकली वाला भी था काफी बेनिफिशियल. वरना काइंड ऑफ थोड़ा मिक्सअप हो जाता है कि सो मेनी टॉपिक साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, उनको बैलेंस करना. तो पता था इस टॉपिक ये होना है, इस वीक ये टॉपिक होना है, तो पहले से वीकेंड को पढ़ लिया, फिर क्लासेस कर ली, देन मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लिए. तो आई थिंक वो काफी हेल्पफुल रहता है. मतलब काफी हेल्पफुल रहा 12th में आई थिंक. मतलब और मेरे को चैप्टर वाइज भी आई थिंक 12th के चैप्टर्स में ज्यादा कॉन्फिडेंस है एज कंपेयर्ड टू. Yes, great, Amay. So I will just try to close it. आप लोग पेरेंट्स भी वेट कर रहे हैं तो just try to close it. कि तुम लोगों की एडवाइस क्या रहेगी और लोगों के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी. तो मतलब if you would like to give a 1 line or 2 line or 3 line whatever you feel right, what would be your advice? श्रेष्ठ, कुछ एडवाइस रहेगी जो लोग अभी JEE मेंस के लिए अपीयर करेंगे या आगे देंगे पेपर? What should they focus on? आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट है खुद पे भरोसा करना और जितनी भी मेहनत करी है वो अपना 100% देना और खुद पे भरोसा रखना और टीचर्स पे भरोसा रखना कि सबकी मेहनत के हिसाब से 100% देना. अपना रिजल्ट पे फोकस नहीं करना. रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, अपना मेहनत अपना 100% देना है और भरोसा रखना है अपने. I would say to मतलब
जो अभी दे रहे हैं ऑल द एस्पिरेंट्स की, जस्ट स्टे कंसिस्टेंट एंड, और मतलब अगर अभी चेंज नहीं दिख रहा है, बाद में चेंज दिखेगा, बाद में इंप्रूवमेंट दिखेगी. जस्ट स्टे कंसिस्टेंट एंड बिलीव इन योरसेल्फ. Okay. Staying consistent कि भाई चेंज नहीं भी दिख रहा है तो भी keep working hard so that you can improve. You will improve eventually. That is the feeling that is there. Believing in yourself is, I think, is a common thing. How about it? How about you, Saptrishi beta ji? Advice में तो what in short, there will be days when you will hate what you are doing. There will be days when you see your friends from earlier partying, uploading pictures, and you will feel, what am I doing? Why did I take this? What have I done? क्या पाप करा है मैंने? But when you see that result, when you see the look on your teachers' faces, on your parents' faces, and you realize that it's worth it. I have been there. I have also thought, why have I taken up science? I could have just done equally good. I could have had a much easier life, because it's very grueling. The pressure is very grueling. We solved hundreds of questions of every chapter, 6-7 hours continuous classes kari हमने, but it is worth it. The result is worth it. Okay. Nice. एडवाइस तो मेरी ये रहेगी कि कंसिस्टेंसी तो काइंड ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होती है, कि डेली एफर्ट पुट करने से आई थिंक वो एंड में काफी एड अप होके बहुत बड़ा ही हो जाता है. आई थिंक वो तो है एक. आई थिंक बहुत बच्चे जो करते हैं, आई थिंक टाइम मैनेजमेंट की थोड़ी मॉक टेस्ट वगैरह से प्रैक्टिस करने से काफी आइडिया लग जाता है कि इट्स वन थिंग टू सॉल्व वन चैप्टर क्वेश्चंस एंड इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग to solve 75 questions, each question involving a different concept. So I think paper practice is very important. And I think मतलब क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है. आई थिंक जितने क्वेश्चन आते हैं अगर वही सही कर लो तो बहुत ही अच्छा स्कोर आ सकता है. तो आई थिंक कई बार होता है क्वेश्चन देख के सॉल्व करने लगते हैं, हो रहा नहीं होता, वो छोड़ दो, एंड में कर लो. आई थिंक ऑप्टिमम लेवल भी रीच कर लो तो आई थिंक वो भी बहुत अमेजिंग हो जाएगा. तो आई थिंक मतलब एडवाइस तो भी रहेगी कि करते रहो, बस रुकना नहीं है. वो रिजल्ट तो काइंड ऑफ बस एक मोटिवेशन की तरह लो, कम आया तो हम अच्छा करेंगे, अच्छा आया तो और अच्छा करेंगे. सो देयर इज नो एंड टू दैट. आई थिंक मेरे को तो ऐसा लगता है कि यार मतलब आई फील सुपर प्राउड, सुपर थिंग्स. ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन. ऑल द बेस्ट गाइस. ठीक है, थैंक यू. नमस्कार. नमस्कार. थैंक यू. Okay. बाय बाय. Bye. Not just you, yaar.